Good morning, student. And today we are going to discuss the next topic, that is the binary phase shift keying. As we know, in the last lectures we are discussing about the different type of the digital modulation technique, like binary amplitude phase shift keying, binary phase shift keying, and differential phase shift keying. Now, today topic is the next modulation technique, in which the frequency of the carrier signal changes in accordance with the message signal. As we know, modulation is a process in which some characteristic of the carrier signal is changes in accordance with the message signal. Now here in this modulation technique, here also the frequency of the carrier signal changes in accordance with the binary symbol 0 or 1. Now first of all, I'm going to explain what is the BPFSK. In binary frequency shift keying, the frequency of the sinusoidal carrier is shifted according to the binary symbol. In BFSK, the frequency of the sinusoidal carrier is shifted according to the binary symbol. Binary symbol means, as we know, in digital form the message is in the form of the 0 and 1. तो 0 and 1 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये साइनोसाइडल कैरियर का आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा. In other words, the frequency of sinusoidal carrier is shift within the two discrete values. In other words, हम in other language also we can say that the जो sinusoidal carrier है उसकी frequency shift होगी, two discrete values होंगी. Two discrete value means two different values, or the frequency always lie between these two discrete values. However, the phase of the carrier is unaffected. Okay, as you know, this is the frequency shift keying, that in that case the phase of the carrier is remain unaffected, means remain unchanged. This means that we have the two different frequency signal according to the binary symbol. तो सिंपली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देयर इज़ द टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सिम्बल्स. let us consider, let there be the frequency shift by the ohm. Here the symbol ohm are used. यहाँ पे ohm symbol यूज किया हो गया डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए. Then we can write the equation for Bt is equal to 1. For Bt is equal to 1, then SHT. As you know, one thing more, बेसिकली यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इफ़ देयर इज़ 1, अगर आपका 1 होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, अगर वो आपका अगर वो 0 होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. सिर्फ हमें यहाँ पे ये इस चीज़ को वहाँ पे ध्यान देना है. Now for Bt is equal to 1, then SHT, this is the equation, this is the modulation equation, is equal to under root 2 ps cos 2 pi fct ohm bracket में t. This is the equation for the Bt is equal to 1, Bt is equal to 1 transmitted. When Bt is equal to 0 transmitted, then SLT is equal to root 2 ps cos 2 pi fct minus omega. तो हियर जो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो रही है, बेसिकली यहाँ पे जो ओम के फॉर्म में दिखाया गया है, ये जो सिंबल आपका यूज किया है, जब बाइनरी 1 में वो ऐड हो जाएगा और बाइनरी 0 में वो हमारा कम हो जाएगा. ठीक है, मीन्स हियर इज द टू फ्रीक्वेंसी, मीन्स दिस इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर, and this is the extra frequency which are added according to the रिक्वायरमेंट. फ्रीक्वेंसी चेंज ऑलरेडी मैंने ये भी कहा है कि किस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होंगी, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो यहाँ पे एक कॉमन फ्रीक्वेंसी है, वो कॉमन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका चेंज होगा इन अकॉर्डेंस विद द बाइनरी 0 और बाइनरी 1. तो इस ओवरऑल पैराग्राफ में यही कंक्लूड किया गया है कि आपका जब यहाँ पे बाइनरी 1 होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना, और जब आपका बाइनरी 0 होगा तो
हमारा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा. Okay, now after that one more, and here is the convergent table. This is the convergent table for the BFSK representation. Here that is BT, DT and PST and PLT. ठीक है, ये सिंपली आपके ये दिखा रहा है कि इसको यहाँ पे ये कंबाइंड, ये दोनों इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में ये इक्वेशन को राइट किया गया है. द इक्वेशन एंड 3.2, 5 and 3.6 combinedly may be written as ST is equal to root 2 PS cos 2 pi FCT plus DT, एंड ओम का साइन आपका है एंड देन टी ब्रैकेट क्लोज. तो ये जो डी टी आपका है, दिस डी टी, द वैल्यू ऑफ डी टी इज -1 या +1 डिपेंड अपॉन कि हमारा वहाँ पे बिट हमारा वहाँ पे 1 है कि 0 है. ठीक है, इफ़ द बिट इज़ 1 देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू +1, इफ बिट इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू इज इक्वल टू -1 वोल्ट. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट, now in term of the frequency, as we know, this is the angular frequency. 2 pi fc is the angular frequency, and if divided by the 2 pi we get frequency. ठीक है, तो what is the actual frequency? Now divide this overall term by the 2 pi and we get this one. ठीक है, hence the symbol 1 is to be transmitted, the carrier frequency will be fc plus ohm upon 2 pi and is represented by the fh. हमने इस फ्रीक्वेंसी को fh से रिप्रेजेंट कर दिया, मीन्स fh मीन दिस इज फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी. and if the symbol 0 is transmitted, then the carrier frequency will be the fc minus ohm upon 2 pi and is represented by the fl. ये दो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई. Therefore we can say here, then therefore we have fh is equal to fc plus ohm upon 2 pi and fl is equal to fc minus ohm upon 2 pi, and this is for symbol 1 and this is for symbol 0. तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज़ का वेरिएशन होगा, जो दिख रहा है किस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये वेरी कर रही है. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे ब्रीफ करें, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट हम ध्यान दें कि आखिर बेसिकली हमारा ये होता क्या है, तो हमें यहाँ से यहाँ इसको राइट करना होगा. ये दो इक्वेशन दिखाने होंगे, इन दोनों इक्वेशन को फिर ये कंबाइंड फॉर्म में दिखाना होगा, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी. आपको ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ये चीज़ें आपको दिखानी होंगी. ओके, नाउ दिस इज़ द सिंपली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की. Now next, now the generation. Now first of all I'm going to explain the generation figure here. Like here is the bit input and then inverter. Inverter means अगर आप 1 देंगे तो ये 0 जाएगा यहाँ पे, and after that PST and this PST is same as the bit. हम जो bit यहाँ पे देंगे वो होगा एक लेवल शिफ्टर होगा. लेवल शिफ्टर सिंपली which is used to multiply, just like it is used as the यूनिपोलर सिग्नल की तरह यूज होगा. वो लेवल्स को शिफ्ट करेगा और ये रूट PSTB. ठीक है, और ये सिंपली ये PS मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली आल्सो लेवल शिफ्टर हियर, ये लेवल शिफ्टर आपने ये किया हुआ है, तो जो आप इन्वर्ट होने के बाद जो हमने PLT दिया हुआ है, ये PLT आपका लेवल शिफ्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद एंड वी गेट अंडर रूट PSTB इंटू PLT. ओके, देन हियर इज द मल्टीप्लायर आर यूज्ड. Here the two multiplier they are used, which is used to multiply the carrier signal, and finally here we get the here and we get the term like under√2 upon TB cos 2 pi FST, and यहाँ आपको मिलेगा under√2 upon TB cos 2 pi FLT. ठीक है,
तो ये सिंपली आपका जनरेशन है BPSK का, ठीक है। हमें इसको बताना होगा क्या क्या है। तो सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरीके से एक इन्वर्टर का यूज किया गया है, लेवल शिफ्टर का यूज किया है। मीन्स यहाँ पे हमें यूनिपोलर सिग्नल में हमें इसको चेंज करना है। एंड आफ्टर दैट हियर इज़ द मल्टीप्लायर आपने यूज किया हुआ है। मल्टीप्लायर का यूज है सिंपली टू मल्टीप्लाई द कैरियर सिग्नल। 2 मल्टीप्लायर यूज किया हुआ है अलग अलग बिट्स के लिए, 1 के लिए अलग, 0 के लिए अलग। एंड फाइनली हियर वी गेट द these 2 signal। एंड आफ्टर दैट आफ्टर गेटिंग these 2 सिग्नल, ये सिग्नल को फाइंड करने के बाद देन वी हैव टू ऐड अप, फिर हमने इसको ऐड कर दिया हुआ है। एंड फाइनली हियर वी गेट द BPSK सिग्नल ST। और वो BPSK सिग्नल ST आपका वही है जो अभी आपने ऊपर जो है वो फाइंड किया है। ओके, तो ये थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये हो क्या रहा है। एंड वी नो दैट इनपुट सीक्वेंस BT इज सेम एट PHT। ये एक सिंबल यूज कर लिया गया, BT को PHT के फॉर्म में दिखाया गया। एंड इन्वर्टर इज एडेड आफ्टर द BFT टू गेट द PLT। मीन्स हमें 1 के लिए हमने इंडिकेट कर दिया है PHT से इंडिकेट कर दिया है, और 0 के लिए हमने इंडिकेट कर दिया है PLT से। इस तरीके से हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। देन लेवल शिफ्टर PHT एंड PLT आर यूनिपोलर सिग्नल। तो PHT और PLT हमारे क्या है, ये यूनिपोलर सिग्नल हैं, ठीक है। लेवल शिफ्टर कन्वर्ट द +1 लेवल टू द अंडर रूट PS इंटू TB एंड 0 लेवल इज़ अनअफेक्टेड। तो यहाँ पे जो लेवल शिफ्टर है, अगर आपका +1 है तो उसको शिफ्ट कर देगा अंडर रूट PS TB से, 0 लेवल हमारे अनअफेक्टेड होंगे। दस द आउटपुट ऑफ लेवल शुड बी either under root PS into TB if +1 or 0 if input or 0। सिंपली वी कैन से द लेवल शिफ्टर का जो आउटपुट होगा वो अंडर रूट PS TB होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है वो PS TB आपका होना ही होना है, बिकॉज PS TB बेसिकली है क्या कि आपको टर्म दिख रहा होगा, ये PS TB ये दोनों में कॉमन है, और सिर्फ ये PST और PLT से मल्टीप्लाई किया गया। तो PST अगर आपका इनपुट अगर आपका 1 है तो वो PST होगा, ठीक है। अगर इनपुट अगर आपका 0 हो तो वो PLT होगा, ठीक है। तो इफ़ द आउटपुट ऑफ लेवल शिफ्टर विल बी अंडर रूट PST इफ़ द बाइनरी इफ़ द +1 मतलब क्या हो गया कि जो हमारा PST की वैल्यू हमारी यहाँ क्या हो गई, +1 हो गई, ठीक है। अगर वो 0 हुआ उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, द इनपुट हमारा क्या हुआ 0। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट when the binary 0 is to be transmitted, PLT is equal to 1 and PST is equal to 0, and for binary 1 to be transmitted, PST is equal to 1 and PLT is equal to 0। now in the form of the PH and PL we can say that, इसके फॉर्म में अगर हम कहना चाहें तो अगर आपका अगर आपने 0 को सेंड करना हो तो PL की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो 1 होगी, और PH की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद जब हमें अगर 1 सेंड करना है तो PH की वैल्यू हमारी जो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और PL की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बिट्स की क्या वैल्यू है, 1 है कि 0 है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। hence the transmitted signal will have a frequency either FH और FL। तो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी या तो FH होगी या तो FL होगी, और ये आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि FH क्या है और FL क्या है। फर्दर देयर आर द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ऑफ द लेवल शिफ्टर, 2 carrier signal 520 and 522 are used, and 520 and 522 are orthogonal to each other, ठीक है। ऑर्थोगोनल होना चाहिए मीन्स इनके बीच में हमारा जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री का होना चाहिए। या सिंपली ऑल्सो वी कैन से कि हमारा जो यहाँ पे 520 और 522 हमारा आपस में इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए किसी नंबर्स के, ठीक है। तो आगे ये चीज़ें मेंशन भी किया गया।
two carrier signal 512 and 522 are used, and 512 and 522 are orthogonal to each other, and in 1 bit period of input signal, that is TB, and 512 and 522 have the integral number of the cycle. ये इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकिल आपकी होनी चाहिए. The modulated signal is having the continuous phase, and बस such type of BPSK signal then add the two signal. तो अगर आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो बिट का ड्यूरेशन तो सेम है, बट फ्रीक्वेंसी चेंजेज होगा. तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, यहाँ देखिए ये आपके जो पल्सेस है वो नज़दीक नज़दीक है, मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया. और आप जो जीरो देख रहे हैं यहाँ पल्सेस आपके दूर दूर हैं, मीन्स क्या कहने का मतलब हो गया, हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारा कम हो गया. क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी हमारा FH है, फ्रीक्वेंसी जब हमारा हाई हो रहा है तो कुछ उसमें टर्म हमारे ऐड हो रहे हैं. ठीक है, जैसे अगर इस इक्वेशन को अगर हम लें तो FH इज इक्वल टू FC प्लस ओम/2 पाई है. तो फ्रीक्वेंसी कुछ टर्म फ्रीक्वेंसी हमारा ऐड हो रहा है, और जो लो फ्रीक्वेंसी होगा वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारा कम होना है. तो फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या है कि हमारी जो वेव होंगे वो नज़दीक नज़दीक हो जाएंगी, ये आपको पता है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब है कि हमारा ऐसे वेव जो है वो दूर दूर हो जाना, इस तरीके से. ठीक है, आफ्टर दैट तो ये हमारा बेसिकली रहा आपका जनरेशन ऑफ द BPSK जनरेशन रहा आपका. ठीक है, एंड आफ्टर दैट नाउ रिसीवर. अब मैं डिस्कस कर रहे हैं रिसीवर के बारे में. तो रिसीवर तो रिसीवर बेसिकली आपका यहाँ पे कोहेरेंट डिटेक्शन का यूज किया गया. मेन रिसीवर पे हमें वही हमें ऑसिलेटर यूज करना है, या वही फ्रीक्वेंसी हमें यूज करना है जो हमने ट्रांसमीटर साइड हमने यूज किया हुआ है. ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है. ब्लॉक डायग्राम में आपने क्या क्या किया हुआ है, एक बाइनरी आपका FSK हो गया, फिर आपने एक मल्टीप्लायर यूज किया हुआ, 2 मल्टीप्लायर यूज किया हुआ, बिकॉज यहाँ हमारी 2 फ्रीक्वेंसी हैं, एक FH और एक FL है, और आपने स्टार्टिंग में 2 फ्रीक्वेंसी वहाँ भी यूज किया था. ठीक है, तो वही फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे भी है, 2πfc1 है और 2πfc2 फ्रीक्वेंसी है. देन हियर वी आर यूजिंग द इंटीग्रेटर साइन, हमने इंटीग्रेटर यूज किया है. एंड फाइनली फिर हमने कंपरेटर यूज किया हुआ है. कंपरेटर का यूज है कि जो दोनों इंडिकेटर से आउटपुट आ रहा है उनको आप कंपेयर करके बता सकें कि हमारा मैसेज यहाँ पे हमारा 1 है कि 0 है. ठीक है, तो अगर हम इसको चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अगर हम देखें यहाँ पे, तो डिटेक्शन में बेसिकली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द स्कीम फॉर द मॉड्यूलेशन ऑफ BPSK वेव यूजिंग द कोहेरेंट डिटेक्शन टेक्निक. The detectors consist of the 2 correlator. They are individually tuned for 2 different carrier frequency to represent the symbol and ones. तो यहाँ पे वही मैंने बोला कि कोहेरेंट डिटेक्शन होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी हम जो ट्रांसमीटर पे यूज किए हैं वही फ्रीक्वेंसी हम रिसीवर पे भी होना चाहिए. तो 1 के लिए अलग फ्रीक्वेंसी थी, 0 के लिए अलग फ्रीक्वेंसी थी. तो सिमिलरली हम यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे. मीन्स प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए बिटवीन द ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर. ठीक है, तो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपकी हैं यहाँ पे, कैरियर फ्रीक्वेंसी हैं टू रिप्रेजेंट द सिंबल 1 and 0. एंड कोरिलेटर कंसिस्ट ऑफ द मल्टीप्लायर फॉलोड बाय इंटीग्रेटर. तो ये जो ओवरऑल जो कोरिलेटर बोला गया है, इसमें आपका एक मल्टीप्लायर है और एक इंटीग्रेटर का यूज किया गया है. देन द रिसीव्ड बाइनरी FSK सिग्नल इज अप्लाइड टू द मल्टीप्लायर ऑफ द बोथ द कोरिलेटर. तो जो हमारा रिसीव्ड जो हमारा BFSK सिग्नल है वो दोनों कोरिलेटर पे एक साथ जाएगा, एंड टू द बोथ कोरिलेटर, या सिंपली दोनों मल्टीप्लायर पे एक साथ जाएगा. देन द अदर इनपुट ऑफ द मल्टीप्लायर इज द कैरियर विद द फ्रीक्वेंसी FC1 FC2 आर अप्लाइड एज सून इन द फिगर. तो और मल्टीप्लायर का जो दूसरा इनपुट होगा वो हमारे कैरियर सिग्नल होंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी FC1 या FC2 होगा. फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी है जो आपने ट्रांसमीटर साइड आपने यूज किया हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी आपने दे दिया. एंड multiplied output of each multiplier is subsequently passed through the integrator and generating the output I1 and I2 in 2 path. ठीक है,
और ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमें इंटीग्रेटर से पास करना है। ये इंटीग्रेटर आपको मिल रहा है और इंटीग्रेटर से पास होने के बाद हमें दो पाथ मिलेंगे, एक अपर पाथ एंड एक लोअर पाथ, टू पाथ। द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर आर देन फेड टू द डिसीजन मेकिंग डिवाइस। तो मैंने आपसे बोला था कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में, डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस में एक डिसीजन मेकिंग डिवाइस होता है। वो डिसीजन मेकिंग डिवाइस का आपका यूज यही है कि हमें ये डिसीजन करना है कि हमारा वहाँ पे बाइनरी 1 है कि बाइनरी 0 है। The decision making device is essentially a comparator। ये कंपरेटर की तरह होता है which compared the output I1 in upper path and I2 in the lower path। ठीक है, तो जो ये ऊपर से जो हमारा I1 आ रहा है, नीचे जो हमारा I2 आ रहा है, इन दोनों को ये कंपेयर करेगा। ठीक है, एंड इफ़ द आउटपुट I1 प्रोड्यूस्ड इन द अपर पाथ एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी, तो जो I1 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी FC1, और जो नीचे हमारा जो I2 हो रहा है विच इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी FC2। तो वही लिखना चाहे यहाँ पे है। If the output I1 produced in the upper path associated with the frequency FC1 is greater than I2 produced in the lower path associated with the frequency, then the detector make the decision in the favor of the symbol 1। तो ये कहना चाह रहा है जो हमारा ऊपर से I1 आ रहा है, मीन्स ऊपर से जो हमारा I1 आ रहा है, नीचे जो I2 आ रहा है, और ये I1 जो आपका FC1 से रिलेट कर रहा है और I2 आपका FC2 से रिलेट कर रहा है। अगर ये कंपरेटर में अगर ये ऊपर वाली वैल्यू मीन्स I1 अगर क्या कहते हैं आपका बड़ा है I2 से, तो जो डिसीजन मेकिंग हुआ वो इन द फेवर ऑफ द वन। इन फेवर ऑफ वन मीन्स क्या है कि हमारा जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, हमारा बाइनरी वहाँ पे 1 होगा, मीन्स हमारा बाइनरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और कंडीशन आता है, अगर नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ़ I1 इज़ लेस देन I2, ये जो I1 आपको मिल रहा है अगर ये I2 से लेस है, इफ़ द I1 इज़ लेस देन I1 is less than I2, then decision making device in the favor of the 0, तो आउटपुट हमारा इन फेवर ऑफ द 0 होगा। दिस टाइप ऑफ द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक आल्सो कॉल्ड द कोरिलेशन रिसीवर एंड डिटेक्टर बेस्ड ऑन द कोहेरेंट डिसीजन रिक्वायर द फेज एंड टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। और ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि कोहेरेंट डिटेक्शन में रिक्वायर में फेज एंड टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन आपका होना चाहिए। तो ये जो पूरा आपका टॉपिक रहा, ये आपने जाना कि BFSK के बारे में जाना, किस तरीके से बेसिकली किस तरीके से आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, वो आपने ये जान लिया कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर आपने जनरेशन को देखा, जनरेशन को एक्सप्लेन किया, एंड आफ्टर दैट फिर आपने कोहेरेंट डिटेक्शन देखा आपका BFSK का। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।